وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی پشاور دھماکے کی شدید مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ طلباء پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن کا بیانیہ سیکیورٹی ایشوز حل کرنے میں معاون ثابت نہیں ہوگا۔ فواد چودھری بولے، پشاور میں ایک بار پھر کم ظرف دشمن نے بچوں کو نشانہ بنایا، اس لڑائی کو ہر صورت ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور دھماکے کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے 5-5 لاکھ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 2-2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا پولیس کو واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا بھی حکم۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کہتے ہیں طلباء اور مدرسہ سافٹ ٹارگٹ تھے۔ کوئٹہ اور پشاور میں تھریٹ الرٹ کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی تھی۔ اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق غنی کی بھی دھماکے کی مذمت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ معاون خصوصی کامران بنگش نے بتایا وزیر اعلیٰ کے پی نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بچوں اور مدرسے کو نشانہ بنانے والے درندے سخت سزا کے مستحق ہیں، ایسے زخم قوم پہلے بھی سہ چکی ہے۔ پشاور دھماکے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا رد عمل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا دہشت گرد پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کو متزلزل نہیں کر سکتے، زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا جن ماؤں کی گود اجڑ گئی ان کے دکھ کا تصور اور ازالہ ممکن نہیں۔ آج ہی بھارتی فوج نے اپنے ناپاک قدم جنت نظیر وادی میں رکھے تھے۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد۔ دنیا بھر میں کشمیری برادری کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری۔ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہی حکومت سے نجات کا واحد حل ہے۔ مریم نواز اور سردار اختر مینگل کے درمیان ملاقات میں اتفاق، راون میں ہونے والی ملاقات میں دونوں کی اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمات کی بھرپور مذمت، پی ڈی ایم کے اب تک کے تمام جلسوں کو بھی کامیاب قرار دیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی آرڈر سے پہلے جیل والوں نے زمین پر بٹھایا، بیڈ کے بجائے ٹوٹی ہوئی چارپائی دی گئی۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو فوری عدالت طلب کر لیا۔ عدالت کا شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا جیل ٹرائل کرنے کے حوالے سے ڈی جی نیب کو بھی نوٹس۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے نیب کی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، شہباز شریف ایسے شخص تو نہیں جنہیں کوئی جانتا نہ ہو اور وہ فرار ہو گئے ہوں۔ شہباز شریف جیل میں ہیں تو نام ای سی ایل میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ انکوائری کے مرحلے پر نام نکالنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ اراکین کا 12 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ وفاقی کابینہ کو گندم اور چینی سمیت اشیاء ضروریہ کی دستیابی پر بریفنگ دی گئی۔ مختلف محکموں کے سربراہان کی خالی آسامیوں بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ فوجداری قوانین میں اصلاحات سے متعلق بریفنگ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم دنیا سراپا احتجاج۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑنے لگی۔ ترک صدر نے بھی بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ کویت اور یمن میں فرانسیسی ادویات کا بائیکاٹ، الجزائر اور فلسطین سمیت کئی ممالک کی مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ٹویٹ میں صدر میکرون کے بیان پر غم و غصے کا اظہار۔ بغداد اور تیونس میں فرانسیسی سفارتخانوں کے باہر مظاہرے بھی ہوئے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इसमें मोहम्मद खुशनुमा और मुनफरिद अंदाज में लिखने का मुकाबला कराने और नुमाइश के इनेकाद का ऐलान। महकमा इत्तलात के ज़ेर तमाम खत्ताती मुकाबले और नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 12 रबीउल अव्वल के मौके पर करेंगे। 3 दिन जारी रहने के बाद ये मुकाबला 1 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। पोलियो का खात्मा हमारा मिशन, बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। 6 रोज़ा कौमी ज़ैली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। 128 अजला में 3 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज। 24 घंटों में 773 नए मरीज सामने आ गए। एक दिन में मजीद 6 अमवात के बाद जांबक अफराद की मजमूई तादाद 6745 तक जा पहुंची। नए केसेस के बाद एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 11190 हो गई। अब तक 3,11,440 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कॉलोनी के मदरसे में धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद शहीद जबकि तलबा समेत 125 जख्मी हुए। एसपी सिटी वकार अहमद ने बताया धमाका बैग में रखे बारूदी मवाद से हुआ जिसे एक मशकूक शख्स मदरसे में छोड़ कर गया था। दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाका, 8 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। धमाका बैग में रखे बारूदी मवाद से हुआ जिसे मशकूक शख्स मदरसे में छोड़ कर गया था। की दीर कॉलोनी में मदरसे में बम धमाका, पूरा इलाका लरज उठा। इतला मिलते ही इमदादी इदारों, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गईं। शहीदों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम खुद अपने मदरसे में दर्स पढ़े थे कि इतने में कॉल आया कि शेख रहीमुल्लाह हक़ानी मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ है। हम बस करीब पहुँचे कि ये हाल देखा। बहुत से तलबा शहीद थे और बहुत से ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। क्लास में जो तलबा थे तो 1200 से ज़्यादा थे। उम्र सबकी 22 साल से ऊपर थे, लेकिन 1-2 तलबा थे जिसका उम्र कम थे। पुलिस के मुताबिक धमाके में टाइम बम इस्तेमाल किया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी हमने की है, उसमें ये 5 kg टाइम डिवाइस के एविडेंस मिले हैं और इसका जो डैमेज इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये रूम है और उसमें जब वेव्स निकलती हैं तो वो बाहर इनको वेंट होल नहीं मिल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहीदों और जख्मियों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। तमाम शुहदा के अहले खाना को 5-5 लाख जबकि जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश का कहना है नेक्टा ने मुमकिन दहशतगर्दी का भी अलर्ट जारी किया था। पेशावर में खदशा था, इसी वजह से सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर थी और बीफ अप हो चुकी थी। इसी मदरसे में जहाँ पे ये धमाका हुआ, इधर भी 3 दिन पहले जो है पुलिस, जो मकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वफद आ चुका था। इधर की इंतजामिया को बताया जा चुका था कि वो भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लें। मुंतजमीन के मुताबिक मदरसे में 1000 से ज़ायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम थे। पुलिस ने दावा किया है कि इब्तदाई तफ्तीश में अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। साथी रिपोर्टर एहतिशाम खान के साथ एहतिशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पेशावर में धीर कॉलोनी धमाके के बाद शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाके में 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तलबा समेत तमाम जख्मियों को लेडी रीडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात बताएंगे विसाल यूसुफ से। पेशावर में दीर कॉलोनी धमाके के बाद शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू इदारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में ज़्यादातर झुलसे हुए हैं। हमारा वाहिद जो फोकस है वो ये है कि जो पेशेंट्स यहाँ पे जो इंजर्ड आए हैं उनका हम बेहतरीन जो है वो ख्याल रखें ताकि उनका बेहतरीन जो है वो चांस हो फुली रिकवर करने का। लेडी रीडिंग अस्पताल के अलावा दीर कॉलोनी धमाके के जख्मियों को खैबर टीचिंग अस्पताल लाया गया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। विसाल यूसुफ जई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी वाक़े की मज़म्मत की है।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि पेशावर के मदरसे में धमाके ने रंजीदा कर दिया। मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। सियासी क़ुव्वतों को देखना होगा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बातें न हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पेशावर में धमाके की शदीद मज़म्मत की। कहते हैं मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे हैं, इनका कोई मजहब नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम के अज़्मो हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा पेशावर धमाके में नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। जिन माओं की गोदें उजड़ गईं उनके दुख का तसव्वुर और इजाला मुमकिन नहीं। अल्लाह से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र और जख्मियों को सेहतियाबी अता फरमाए। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की पेशावर में मदरसे पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कहना है मदरसे में होने वाला धमाका इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बच्चों पर हमला मुल्क दुश्मन अनासर का बुज़दिलाना अमल है और मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, मुल्क और कौम की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले अपने नापाक अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। अपने बच्चों की कुर्बानी के मकरूज़ हैं और किसी सूरत ऐसे बुज़दिलाना अमल से कौम के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने मज़ीद कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंज और गम है। उनका ये भी कहना था कि कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंज और गम है और मज़ीद कहा कि पेशावर में मदरसे पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने पेशावर धमाके की मज़म्मत की है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि दुश्मन कुव्वतें कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। ज़ख्मियों को फौरी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। धमाके में शहीद तलबा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। इंसानियत के दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पार्टी ज़राए का ये बताना है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा, मुलाकात में PDM को आगे ले जाने से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस आए। एहसास से महरूमी में कमी होती नजर आती तो हुकूमत का साथ ना छोड़ते। हुकूमत ने हमारे 6 निकात पर अमल नहीं किया था। हम एक ही समत में जा रहे हैं, यू टर्न नहीं लिया। पेशावर धमाका अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिन्होंने दस्तखत किए हैं आज वो ऐवान सदर में नहीं बैठे हुए? क्या जिन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं क्या आज वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए? जब उन्होंने हमसे अपने वो वायदे पूरे नहीं कर सके, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, या तो वो पहले दिन हमें कह देते कि जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी के साथ जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत साजी के दौरान, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी बस की बात नहीं। ये भी उसी दिन हमें ये कह देते तो शायद नौबत इस हद तक तलखियों तक ना पहुंचती और असेंबली के फ्लोर पर जो है हम उन्हें टाटा ना कहते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG के मामले पर सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल काबीना कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ मकामात का CCTV रिकॉर्ड हासिल किया। कमेटी अरकान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ अंदराजे मुकदमा से कबल की सूरत हाल का भी जायजा लिया है। इंक्वायरी कमेटी चंद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करेगी। IG सिंध पुलिस और दीगर पुलिस हुकाम के साथ भी राबता किया जाएगा। मरियम नवाज का वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक ताहाल फैसला नहीं हुआ। कमेटी दस्तयाब शवाहिद, रिकॉर्ड और सामने आने वाली इत्तलात और मालूमात पर गौर कर रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 साल में मुल्क की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई की शरह बढ़ने का 72 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। तमाम जमातें आइन की सरबलंदी के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। 2 सालों में उसकी मईशत क्रैश हो चुकी है।
2 सालों में महंगाई 72 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 2 सालों में बेरोजगारी और गुर्बत 72 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नाअहल और नालायक हुकूमत है। एक ऐसा अनाड़ी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई थी। और जब आप एक अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी पे बैठाते हैं तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है। हर रोज पाकिस्तान का एक्सीडेंट होता है और उसकी सजा 22 करोड़ अवाम को मिलती है। पर बातचीत की गई। गवर्नर और वजीर आला पंजाब की जानिब से पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत, अपोजिशन से भी एहतजाजी जलसों की सियासत तर्क करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा अपोजिशन की सियासत मुल्क में इत्तेहाद व यकजहती को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था दहशतगर्द मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, वो अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत की गई। आगे बढ़ेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन से आवाम का टाइम और पैसा बचेगा। वो पूरी कौम को ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऑपरेशनल होने पर मुबारकबाद देते हैं। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का जेल ट्रायल करना पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हारून से। शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसीक कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में देर से पेश करने पर अदालत बरहम। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का जेल ट्रायल करना पड़ेगा। आइंदा तमाम मुल्जिमान को 9:30 बजे तक अदालत पेश करें। शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म लगाने की मुखालफत की और कहा कि प्रोसिक्यूशन को इमरान खान की हिदायत हैं कि शहबाज शरीफ को सजा दिलवाएं। पीटीआई की पार्टी ने अदालतों में इसको घसीटा और लाइन को और 2 साल और ज़ाया किए। 4 साल की ताख़ीर ये पीटीआई की पार्टी के ऊपर जाती है। जानबूझ के ताख़ीर की और कौम का वक्त ज़ाया किया और अरबों रुपए इसके ऊपर मजीद सर्फ हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालती ऑर्डर पर अब उन्हें कुर्सी दे दी गई है, उन्हें टूटी हुई चारपाई फराहम की गई है, बेड नहीं दिया गया। अदालत ने इस हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया।